السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ میں شازیت احمد خان صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کی راہ ہموار، پولنگ کل ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 25 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا، 21 خواتین اور 4 اقلیتی نمائندے شامل۔ تقریب میں ارکان اسمبلی سمیت مختلف شخصیات کی شرکت۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو ارکان اسمبلی سے حلف لینے کے لیے نامزد کیا۔ جلد حلف یقینی بنانے کے لیے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے مراسلہ ارسال کیا گیا تھا۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ آج انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ آج انہیں ووٹ ٹیکنگ سیریمنی نہیں کی۔ اگر آج وہ صبح کر لے تو آج شام کو نہ ہوتی۔ ووٹ ٹیکنگ تو پھر بھی ہونی تھی، اور کل سینٹ کا الیکشن ہونا تھا۔ تو جب خود جو ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا، تو 6-5 کے فارمولے پہ انہوں نے ایگری کیا۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے اپوزیشن کے وہ وڈرا ہوئے۔ آئین کے تحت 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آئین کی خلاف ورزی کی۔ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں فارمولہ طے پایا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے آزاد ارکان سے بات چیت جاری ہے۔ کوشش ہوگی 6 سے 7 ارکان منتخب کرائیں۔ پی ٹی آئی کا 90 دن کی تحریک کا اعلان پہلے کی طرح دفن ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ کے پی میں جو اس وقت صورتحال ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، وہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو سیٹیں آج دوسری جماعتوں کو ملی ہیں وہ پی ٹی آئی کی اپنی قانونی اور سیاسی غلطی تھی، جس کا فائدہ دوسری جماعتوں کو ہوا اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو خود ہوا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے سازش کے تحت ارکان کو حلف برداری سے روکا۔ بغاوت سے بچنے کے لیے کورم کا بہانہ بنایا۔ پی ٹی آئی نے اپنی نااہلی کی وجہ سے مخصوص نشستیں کھوئیں۔ سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا آئینی جرم ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری۔ پی ٹی آئی کا سینٹ انتخابات سے راہ فرار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ارکان غائب۔ حکومتی رکن کی جانب سے کورم کی نشاندہی۔ اسپیکر نے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لیے بغیر اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن اور خواتین ارکان اسمبلی کا احتجاج۔ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی میں شدید اختلافات۔ ناراض ارکان ڈٹ گئے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے سے صاف انکار۔ خیبر پختونخوا میں کل ہونے والا سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ میدان نہیں چھوڑیں گے، ناراض ارکان کا موقف۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ناراض ارکان کے خلاف کارروائی کا اندیا۔ ناراض ارکان دستبردار نہ ہوئے تو پارٹی سے نکال دیں گے، بیرسٹر گوہر کی دھمکی۔ پھر ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کا جمہوری روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں سے یہ کیسی مفاہمت ہے کہ ان کے حلف اٹھانے کا راستہ روکا گیا؟ یہی غیر آئینی اور غیر جمہوری رویہ بانی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کی قرارداد سے بچنے کے لیے قاسم سوری اور عارف الوی کے ذریعے اختیار کیا۔ یہ جماعت جمہوری ایوانوں کے لیے نہیں، پی ٹی آئی صرف سڑکوں اور چوراہوں پر ہنگاموں اور پرتشدد احتجاج کے لیے بنی ہے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں میں 13 دہشت گرد جہنم واصل۔ ملکنڈ میں آپریشن کے دوران فتنول ہندوستان کے 9 دہشت گرد مارے گئے، 8 گرفتار۔ قلات میں آپریشن کے دوران فتنول ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
پڑھو گے تو بڑھو گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فروغ تعلیم کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ۔ پنجاب میں سکول آن ویلز موبائل لائبریری آن ویلز شروع کرنے کا فیصلہ۔ سکول آن ویلز الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا، رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے۔ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ لائبریری آن ویل کو کسی بھی میدان، گراؤنڈ یا کھلی جگہ پر سٹیشن کیا جا سکے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز، این ڈی ایم اے کا 25 جولائی تک سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں وقفے سے بارشیں متوقع، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ڈیجیٹل معیشت، تیز تر انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے آئی ٹی شعبے میں انقلابی پیش رفت۔ ایس آئی ایف سی اور وزارت آئی ٹی کی مشترکہ کوششوں سے آئی ٹی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ۔ آئی ٹی برآمدات 3.8 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان 2030 تک 15 ارب ڈالر کی آئی ٹی برآمدات کے ہدف کے حصول کی جانب گامزن۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائیوں میں تیزی، سری نگر، بڈگام، پلوامہ اور گاندربل میں چھاپے، 10 بے گناہ کشمیری گرفتار۔ وادی میں خوف و دہشت کی فضا، کل جماعتی حریت کانفرنس کا انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار کو ویزا بحران کا سامنا، امریکہ کے بھارت سے اسٹریٹجک تعلقات کی حقیقت کھل گئی۔ امریکہ کی جانب سے بھارتی طلبہ کا اجتماعی ویزا مسترد کرنا مودی سرکار کے لیے عالمی سطح پر رسوائی کا سبب۔ امریکہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد میں 70 تا 80% کمی، بھارتی طلبہ پریشانی سے دوچار۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری اور فائرنگ، 130 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل۔ دیر البلح میں غذائی قلت سے 2 بچے جاں بحق، غزہ کے ہسپتالوں میں ہر گھنٹے غذائی قلت کے کیسز آ رہے ہیں۔ امداد کی بندش کی وجہ سے شہری بھوک سے مر رہے ہیں۔ اونروا Fultos gets the treatment. 6. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's 6. Shahid Afridi, you beauty. What a win. بھارت کا کھیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کھلواڑ، شاہد آفریدی کے خوف سے بہانہ بنا کر فرار۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارتی کھلاڑیوں کی ہٹ درمی کے باعث پاکستان اور بھارت کا مقابلہ منسوخ۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم آفریدی بھارتیوں کے اعصاب پر سوار۔ آفریدی کے ڈر سے بھارتی کھلاڑیوں کا میچ کھیلنے سے انکار۔ شائقین کرکٹ کا بھارتی رویے پر شدید مایوسی اور ناراضگی کا اظہار۔ Now he's gone and charging down the wicket. There you go. Flicked it up in the air. Take it! Movement early, picks it up and right down. ڈھاکہ میں پہلا T20 میچ بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی، 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ گرین شرٹس 19.3 اوورز میں 110 رنز بنا کر آؤٹ، صرف 3 بلے باز ڈبل فگر میں پہنچ پائے۔ بنگلہ دیش نے ہدف 15.3 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ دوسرا میچ منگل کو ڈھاکہ ہی میں شیڈیول، سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ تھائی لینڈ میں ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل، پاکستان سپورٹس بورڈ کا والی بال ٹیم کے لیے 82 لاکھ روپے کیش ایوارڈ کا اعلان۔ ہر کھلاڑی کو 6 لاکھ روپے ملیں گے، کوچ کو 10 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ فائنل میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن ایران کو 2 کے مقابلے 3 سیٹ سے ہرایا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔
International Civil Aviation Organization और International Air Transport Association के मुताबिक 90% से जायद फजाई हादसात 3000 फीट से कम बुलंदी पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं, जिनसे सैकड़ों अफराद जान से चले जाते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए बजरिया रिंग फेंसिंग मुख्तलिफ इलाके नो बर्ड जोन करार। लाहौर मशरकी बाईपास, मनावा अस्पताल दाहोरी वाला, PKLI, चुंगी अमर सद्दू, इछरा और चाहमिरा से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। एयरपोर्ट्स के करीब खुले आम कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ढक्कन वाले कूड़ादान लाजमी करार। माहौलियाती हिफाजती इकदामात के बगैर चलने वाले मज़बा खानों और पोल्ट्री फार्म्स की बंदिश। चमड़े के कारोबार पर माहौलियाती कवानीन सख्ती से लागू। घरों की छतों, दरबारों और अवामी मकामात पर परिंदों को दाना डालने, कबूतर पालने और कबूतर उड़ाने पर पाबंदी। जिलाई इंतजामिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स मुतहर्रिक। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सख्त सजाएं और भारी जुर्माना किया जाएगा। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले 25 अरकान की हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। तफसील बता रहे हैं अख्तर खान अपनी रिपोर्ट में। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 खवातीन और 4 अक़लियत नुमाइंदे शामिल हैं। इन अरकान का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन से है। ये अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हलफ नहीं उठा सके थे। इलेक्शन कमीशन ने इस सूरत हाल पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मरासला इरसाल किया और दरख्वास्त की कि वो हलफ बर्दारी मुमकिन बनाने के लिए मुदाखिलत करे। अदालत की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया गया कि वो इन अरकान से जवाबित के मुताबिक हलफ ले। इसके बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में इन अरकान से हलफ लिया। आज इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती। वोट टेकिंग तो फिर भी होनी थी और कल सेनेट का इलेक्शन होना था। तो जब खुद जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं फिर कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं। इससे पहले स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत रुकन शेर अली अफरीदी ने कोरम की निशानदही की थी, जिस पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था। अपोजिशन ने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। असम्बली हाल के बाहर अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट के इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर और तयशुदा फार्मूले के मुताबिक होंगे। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हलफ बर्दारी के बाद सेनेट इंतखाबात का अमल शुरू होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी इंतजामात करने की हिदायत की है। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI अपनी नाअहली की वजह से मखसूस नशिस्तें खो चुकी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक साजिश के तहत अरकान को हलफ उठाने से रोका। तफसील बता रहे हैं अहमद फराज। दाखिला उमूर के वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI असम्बली के कवायद और जवाबित के बरअक्स इकदामात कर रही है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि PTI अपनी नाअहली की वजह से मखसूस नशिस्तें खो चुकी है और अब असम्बली में नाकामी देखते हुए कोरम का बहाना बनाया जा रहा है। KP में जो इस वक्त सूरत हाल है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है और इसमें सबसे पहले जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो PTI की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी, जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान PTI को खुद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की नशिस्तों के इंतखाबात के हवाले से तलाल चौधरी ने कहा है कि सेनेट की तकमील को रोकना एक आईनी जुर्म है। उन्होंने कहा है कि PTI ने हमेशा अपने कारकुनों को नजरअंदाज करके अरबपति अफराद को सेनेट के टिकट दिए। KP में सेनेट इलेक्शन है, भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी PTI तो हमेशा बोली लगवाते हैं। वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम का मामला हो, वो सेनेट की सीटें हो, वो बाकी कोई आपकी
पार्टी की सीटें हों, उसकी बोली और उसमें अरबपति और ऐसे लोग लाए जाते हैं जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। कोहिस्तान में अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल के बारे में तलाल चौधरी ने कहा है कि खुद पीटीआई के लोग अब करप्शन का एतराफ कर रहे हैं और इस करप्शन स्कैंडल में नेप ने एक बड़ी रकम बरामद कर ली है। कोहिस्तान स्कैंडल जैसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए के पैसे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें आपकी हुकूमत, वजीर आला और आपके लोग तस्लीम करते हैं कि ये जुर्म, ये करप्शन और ये बदअनवानी केपी में उनके जेरे साया उनकी हुकूमत में हुई और उसके बेनिफिशियरी कौन है, वो भी आपके अपने लोग हैं। वजीर ममलिकत ने कहा है कि करप्शन पीटीआई का वतीरा बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि कोहिस्तान स्कैंडल ही नहीं, इस जैसे कई मेगा करप्शन स्कैंडल्स मंजर आम पर आ चुके हैं। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि पीटीआई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अपोजिशन जमातों से ये कैसी मफाहमत है कि उनके अरकान का हलफ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वही गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैया है जो बानी पीटीआई ने करारदाद अदम एतमाद से बचने के लिए कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए इख्तियार किया था। न अदम एतमाद को रोका जा सका, न अपोजिशन अरकान के हलफ को रोका जा सकेगा। अलबत्ता ये हकीकत और पुख्ता हो गई है कि ये जमात जमहूरी ऐवानों के लिए नहीं, सिर्फ सड़कों चौराहों पर हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मालाकंड में कार्रवाई करते हुए भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक 16 ta 20 जुलाई 2025 के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, लेविज, CTD और जिले इंतजामिया ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन किया। ये कार्रवाई फितना अल खवारिज के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर अमल में लाई गई और ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहा, जिसके दौरान फोर्सेज ने महारत के साथ इलाके का घेराव करके शिद्दत पसंदों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए जबकि 8 को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के जेर इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए जबकि भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। इलाके के अवाम ने इस कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए रियासती इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया है, जबकि मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौम के साथ मिलकर मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 19 और 20 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया, जिसमें हिंदुस्तानी प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और दहशतगर्दी के मर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कारबंद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। जिला कलात और जिला मालाकंड में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, जो मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस आवान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। मोबाइल ऐप से खवातीन की जानिब से इमरजेंसी की सूरत में शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। वजीर दाखिला ने खवातीन और कमजोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मजीद फाल बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ऐप और ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में हमारे अज़म का आकाश है। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के लिए बनाया गया है और इसके लिए हेल्पलाइन 1815 मुख्तस की गई है।
1815 हेल्प लाइन पर कॉल ट्रैकर, कॉल रिस्पॉन्डर और तफ्तीशी अफसरान भी खवातीन पुलिस एहलकार होंगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने वजीर दाखिला को सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों को 3100 कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से इस्लामाबाद में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पांस में अहम किरदार अदा किया है। वजीर दाखिला ने सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने और सर्विलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस करने की भी हिदायत की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि लोगों को घर घर सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नारोवाल में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के लिए 8 जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसी सहूलियात भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। उन्होंने खुसूसी बच्चों के वालिदैन से कहा कि वह उन्हें मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डॉक्टर हसन जवाद ने वफाकी वज़ीर को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मंसूबा। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील्स की उसूली मंजूरी दे दी है। स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। स्कूल ऑन व्हील्स में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। स्कूल ऑन व्हील्स में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज़ मुहैया किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को किताबें पढ़ने के मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। जदीद तरीन बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर और टेबल भी मुयस्सर होंगे। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और साइंस की बुक्स के अलावा मैगजीन्स भी रखे जाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। माली साल 2025-26 से तमाम घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब करेगा। इस हवाले से बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। लाहौर में होने वाली मफाहमती याददाश्त की तकरीब के दौरान महकमा हाउसिंग से सिकंदर ज़ीशान और बैंक ऑफ पंजाब से उमर खान ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे की तकरीब में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत तमाम घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करेगा। SIFC और वजारत IT की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान की IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। माली साल 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान की IT बरामदात $3.8 अरब की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। SIFC की मुअस्सर काविशों की बदौलत पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़िन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वजारत IT की जामे हिकमत अमली ने IT बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन बनाया। IT, ITES और फ्रीलांसेस बरामदात में 18% इजाफा हुकूमत की मुअस्सर इक़दामात का मुँह बोलता सबूत है। हुकूमत के दानिशमंदाना फैसलों के बायस माली साल 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान की IT बरामदात $3.8 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जबकि 2030 तक $15 अरब की IT बरामदात का हदफ हासिल करने की जानिब पेशकदमी जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत और उनके जुर्रतमंदाना माशी फैसलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त को मुस्तहकम किया। IT के मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल मईशत, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ ने कौमी IT सेक्टर में इनकलाबी पेशरफ्त मुमकिन बनाई। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, हिंदुत्व का नया निशाना। भारत में अक़लियतों के बाद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स भी गैर महफूज हो गए हैं। मोदी राज में हिंदुत्व गुंडों के अक़लियतों और कारोबार पर हमले रोज का मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। हिंदू रक्षा दल इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा सावन का पवित्र महीना है, ये 1 महीने का हमारा ये सावन है। हम चाहते हैं इसमें मीट की दुकानें वगैरह, KFC, नजीर, ये सारे 1 महीने बंद रखे। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सोच ने भारत को आलमी सरमायाकारों के लिए खौफनाक और गैर महफूज बना दिया है। आलमी सतह पर नॉन वेज खानों की पहचान रखने वाले ब्रांड KFC पर इंतहा पसंद हिंदू बलवाइयों की यलगार से खौफ हिरास फैल गया। भारतीय रियासत यूपी के शहर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की जुनूनियत ने रोजगार और मईशत को रौंद डाला। उनके KFC पर हमले से जहां इमलाक तबाह हुई, वहीं जान के खौफ से अमले को मजबूरन दुकान बंद करना पड़ी। मारूफ भारतीय निजात स्कॉलर, तज्जिया निगार और प्रोफेसर अशोक सवाइन कहते हैं कि यूपी में हिंदुत्व गैंग के जुनून
सुन्नियों ने KFC पर हमला किया क्योंकि वो अपने नाम नेहाद मुकद्दस महीने में नॉन वेज यानी गोश्त वाली ग़िज़ा फरोख्त कर रहा था। अगर KFC मुर्गी नहीं बेचेगा तो फिर क्या बेचेगा? मोदी की हिंदुत्व इंतहा पसंदी ने मजहब को तशद्दुद और दहशत का नया हथियार बना लिया है। मोदी सरकार में अक़लियतों के बाद अब बैनुल अक़वामी ब्रांड्स और कारोबार भी गैर महफूज हो चुके हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मोदी राज में भारत को एक और आलमी रुसवाई का सामना। भारत में अमरीकी वीज़ा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमरीका की जानिब से भारतीय तलबा पर अदम एतमाद मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी पर सवालिया निशान है। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी। मोदी सरकार के नाम नेहाद दावों के बावजूद अमेरिका के साथ भारत से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की हकीकत खुल गई है। अमेरिका की जानिब से भारतीय तलबा को वीज़ा देने से इनकार मोदी सरकार के लिए आलमी सतह पर रुसवाई का सबब बन गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमेरिकी वीज़ा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अपॉइंटमेंट स्लॉट की बंदिश और मुस्तरक किए जाने में इजाफे के बायस भारतीय तलबा के लिए अमरीकी वीज़ा में 80% तक कमी वाक़या हुई है। वीज़ा जल्द जारी ना हुए तो हज़ारों भारतीय तलबा और तालिबात के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। The US government has ordered stricter background checks. That includes social media screening for international students. Fortunately, due to the ongoing circumstances with the visa, the hope seems to be dying for it. There have been non-stop calls we started getting from both parents and students. They really don't know how to interpret the current situation. NDTV ने मजीद कहा कि हजारों तलबा की नाकामी पर मोदी सरकार पर शदीद सियासी दबाव है। हर केस में दफा 214B के तहत वीजा मुस्तरद हो रहा है। भारत की नाम नेहाद नौजवान ब्रेन फोर्स को रोककर अमेरिका ने मोदी सरकार की सॉफ्ट पावर का पोल खोल दिया है। अमेरिका का भारतीय तलबा पर अदम एतमाद मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर भी सवालिया निशान बन गया है। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात और जालिमाना पॉलिसियों ने भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बायस अमेरिका भारत से फासला इख्तियार करने की कोशिश में है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हिंदुत्व और सिहूनी नजरियात खत्ते की सलामती, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सालमियत के लिए संगीन खतरा हैं। भारतीय वेबसाइट scroll.in ने हिंदुत्व और सिहूनियत में मुमासलत के हवाले से लिखी गई किताब का अहम तज्ज़िया जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार अहमद। scroll.in भारतीय वेबसाइट ने सिहूनियत और हिंदुत्व में मुमासलत के हवाले से आज़ाद ईसा की किताब का अहम तज्ज़िया जारी किया है। तज्ज़िये में लिखा है, सिहूनी तहरीक ने जंग अजीम अव्वल के बाद फ़लस्तीन पर कब्जे की बुनियाद रखी। हिंदू कौम परस्तों ने यूरोपी फॉशिज़म और सिहूनियत दोनों की हिमायत की। scroll.in लिखता है, हिंदुत्व और सिहूनियत का मफाद मुश्तरक है। दोनों का मुश्तरका मकसद दीगर मज़ाहिब की शनाख्त मिटाना है। Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। किताब के मुताबिक हिंदुत्व के बानी सावरकर ने 1939 से मुसलमानों को हिंदुस्तान का यहूदी करार दिया था। आज के भारत में मोदी सरकार भी ज़ायनिज़्म के तहत फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी और शहरियत की मनसूखी को सराहती है। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी और हिंदू आबादकारों की रजिस्ट्रेशन इजरायली नेशन स्टेट कानून की तर्ज पर है। इजराइल और भारत दोनों मुल्कों में मुसलमान अक़लियतों को शहरियत से महरूम करने के लिए सियाह कानून बनाए जा रहे हैं। What they're trying to say is that look, Israel and India, we have a common enemy, and that common enemy are the Muslims. India is a secular democracy, but with a Hindu nationalist party in government, that's under threat. Because they want to make India a Hindu state. बीजेपी इक़्तिदार में तजावुज़ात के नाम पर मुसलमानों के घरों को बिल्डोज करना भारतीय पॉलिसी का हिस्सा है। आसाम में NRC के तहत मुसलमान और ख़ास तौर पर बंगालियों को शहरियत और हक़ राय दही से महरूम रखा गया है। मुंबई में मुसलमानों को रिहायशी सोसाइटी से निकालने की मुनज़्ज़म मुहिम भी शिवसेना की तरफ से चलाई गई। बीजेपी का इलेक्शन एजेंडा हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर मुस्लिम मुखालिफ तकरीरें करना और वोट हासिल करना है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने अपनी जालिमाना कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा और गांदरबल अजला में छापों के दौरान कम अज़ कम 10 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये गिरफ्तारियां पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने अमल में लाई हैं। गिरफ्तार होने वालों में ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं। इन लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों के सोशल मीडिया पर मकबूजा इलाके से बाहर मुख्तलिफ लोगों से रवाबित थे। भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जम्मू में अखनूर सेक्टर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की, जिससे इलाके में खौफ व दहशत की फ़ज़ा पैदा हो गई।
کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری کی فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں فوجی مظالم، بلا جواز گرفتاریوں اور بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کا واحد قابل عمل راستہ ہے جو جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ پاک بھارت امن مذاکرات کے حوالے سے ایک مباحثے میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور منظم سیاسی مذاکرات کی بحالی پر زور دیا گیا۔ سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے زیر اہتمام تقریب میں منی شنکرائے، خورشید احمد قصوری، مظفر شاہ اور کپل کاک جیسی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا کہ فوجی اقدامات مذاکرات کے نعم البدل نہیں ہو سکتے اور کسی بھی امن عمل میں کشمیری عوام کی آوازوں اور امنگوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ ناظرین، ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ پنجاب بھر میں آج سے شروع ہونے والا مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ معظم الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہا اور حبس کی کیفیت برقرار رہی۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب 65% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، اٹک، چکوال، جیلم، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں 25 جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سے موسم کی بدلتی صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے بڑے دریاؤں میں مانسون بارشوں کے باعث فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 22 سے 24 جولائی کے دوران دریائے جناب، جیلم، راوی، ستلج اور سندھ اور ان سے ملکہ ندی نالوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ریسکیو 1122 سمیت دیگر اداروں نے تمام تر انتظامات پیشگی مکمل کر لیے ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک بھر کی طرح مانسون بارشوں کا سلسلہ سندھ میں بھی جاری ہے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ ڈویژن کے شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں مانسون کی بارشوں کا حالیہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے مختلف شہروں میں بارش ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ برسات بدین میں ریکارڈ کی گئی جبکہ لاڑکانہ، حیدرآباد، میرپور خاص، سجاول، ٹھٹا، جامشورو، گھوٹکی، دادو، نوشہر و فیروز، مہراب پور، سانگڑ سمیت دوسرے شہروں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ بارش سے حیدرآباد، لاڑکانہ اور دیگر شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، تاہم ان ضلع انتظامیہ کی جانب سے مرکزی شاہراہوں اور مارکیٹ سے برساتی پانی کو نکال دیا گیا۔ بارش کے بعد گڈو بیراج اور سکھر بیراج میں پانی کی آمد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان بیراجوں میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تیز بارش، آندھی اور طوفان سے سانگڑ، بدین، سجاول اور لاڑکانہ کے علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ اسپیل جاری رہے گا جبکہ کراچی میں دن بھر بادل چھائے رہے، موسم خوشگوار رہا اور کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے جانی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 130 فلسطینی شہید جبکہ 495 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خوراک کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل ہیں جبکہ وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ کئی متاثرین اب بھی ملبے اور سڑکوں پر موجود ہیں جہاں امدادی اور شہری دفاعی عملہ اب تک ان کے تک پہنچنے سے قاصر ہے۔
7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शहादा की मजमूई तादाद 58,900 के करीब पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि जंगी कश्तियों ने गज़ा बहरी बंदरगाह पर समंदर के अंदर माही गिरों पर शदीद फायरिंग की और उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया। दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमास ने कहा है कि इस जंगबंदी मुआहिदे की पेशकश की थी जिसके तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई मुमकिन थी, तहम इसराइल ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उधर यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिसे तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल के हमलों से मुतासरा एयर डिफेंस सिस्टम को तब्दील कर दिया। ईरानी फ़ौज के डेप्यूटी चीफ ऑपरेशंस महमूद मुस्फी ने कहा है कि गुज़श्ता माह सिहूनी हुकूमत के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान मुतासर होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है ताकि फ़ज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ने ईरान की दिफाई सलाहियतों को तबाह करने की कोशिश की और इस जंग में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे साथियों की कोशिश से मुतासरा सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के साथ ही उसकी जगह नए सिस्टम से मुल्क के फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने में कामयाब हो गए हैं। शामी हुकूमत ने हंगामी कमेटी तश्कील दे दी। शाम की हुकूमत ने सवेदा में इंसानी इमदाद को मरबूत करने और खिदमात की बहाली के लिए हंगामी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात हमजा अल मुस्तफ़ा ने कहा है कि जनूबी सूबे सवेदा में उठाए गए इक़दाम का मकसद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी को कम करना है, न कि फ़ौजी मुहिम शुरू करना। जंगबंदी के ताज़ा तरीन मुआहदे में झड़पों के खतरे वाले इलाकों में दाखिली सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का मकसद बराह रास्त तसादुम को रोकना, शहरियों को बहिफाजत निकालना और आहिस्ता आहिस्ता रियासती इख्तियारात और मामूल की ज़िंदगी को बहाल करना है। और वियतनाम में ख़राब मौसम के बायस सयाहों की कश्ती डूबने से 38 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 8 ताहाल लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या वियतनाम के मशहूर सियाहती इलाके हालोंग बे में पेश आया, जहां ख़राब मौसम के बाद सयाहों की कश्ती डूब गई। डूबने वाली कश्ती पर अमले के 5 अरकान समेत 53 अफराद सवार थे, जिनमें से 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। उनके मुताबिक कश्ती पर सवार ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक वियतनाम की दारकूमत हनोई से था। जापान में पार्लियामेंट के ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शिगिर वाशिबा और उनकी हुक्मरान जमात को मुमकिन शिकस्त का सामना है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इंतखाबात ऐवान बाला की 248 नशस्तों में से आधी यानी 124 नशस्तों के लिए मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म अशीवा ने अपनी जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इत्तेहादी जमात को कुमेटों के लिए सिर्फ सादा अक्सरियत 125 नशस्तें हासिल करने का हदफ रखा है। मौजूदा वक्त में उनके इत्तेहाद के पास 75 नशस्तें मौजूद हैं, इसलिए उन्हें मज़ीद 50 नशस्तें दरकार हैं। रुख करेंगे कौमी खबरों का। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि वो इस साल जश्न आज़ादी 1 से 14 अगस्त तक मनाएंगे। हर गली और हर मोहल्ले में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इस बार 14 अगस्त को मार्के हक से मंसूब कर रहे हैं और इस मौके पर 13 अगस्त को 5 स्टार चुरंगी पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम और MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर हाउस में आज़ादी के महीने को शायाना शान तरीके से मनाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने रेलवे दफातर, इस्तकबालिया, प्लेटफार्म्स और स्टॉल्स का दौरा किया और रेलवे ट्रैक का भी मुआयना किया। हनीफ अब्बासी ने सफाई के नाक़िस इंतजाम और शहरियों खासतौर पर ख़वातीन मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी बेहतर बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की तनसीब के हवाले से भी हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू भी की। और वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने हालिया बारिशों के बायस सैलाब से मुतासरा इलाकों खुद रसूल नगर और दरपुर का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर कायम रिलीफ कैंप और सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुल पर जारी बहाली के काम का भी जायज़ा लिया। ऐसा पानी, ऐसी रफ्तार थी जिसमें कश्तियाँ नहीं जा सकती थी, मगर लोग खुद अपने इसके बावजूद अपनी जान मुश्किल में डालकर वहाँ पर गए और लोगों की जानें बचाईं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और जितना जानी नुकसान इस तरह की आफत से हो सकता था अल्लाह ताला ने हमें उससे बचाया। फ़ौरन रिलीफ एफर्ट्स भी की गई। आज हमने उनका भी आके जायज़ा लिया। यहाँ पर चौटाला के मकाम पर एक रिलीफ कैंप का हमने मुआयना किया। वहाँ पर मेडिकल सहूलियात भी मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं। शहरी वहाँ पर आके अपना चेकअप भी करा रहे हैं। जो हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो घर का नुकसान है, चाहे वो ज़मीनों का नुकसान है, चाहे वो माल मवेशी का नुकसान है, उनका उसके भी लिए भी वहाँ पर अफराद इन रिलीफ कैंप से मौजूद हैं, जहाँ पे मुतासरा अफराद जाके अपनी तफसीलात का अंदराज कर सकते हैं। चूँकि इंशाअल्लाह हुकूमत इन सब अपने बहनों भाइयों का जो नुकसान हुआ उसका अज़ाला करेगी।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरकार ला रही है। वो अपने हल्के कागान में वर्कर्स और मुकामी नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मिलने वाले फंड से वादी कागान समेत दीगर दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि वादी कागान समेत ज़िले भर के दूर दराज इलाकों में स्कूलों और सेहत के शोबे में स्टाफ की कमी और सहूलियात की फराहमी का हुसूल अवाम का बुनियादी हक है। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत शिज़रा मनसब अली ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए ख़तरनाक हैं। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। ननकाना साहब में PTV न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शिज़रा मनसब अली ने कहा कि भारत की आबी जारियत काबिल मज़म्मत है। भारत का सिंतास माहिदों की एक तरफा ख़त्म करना नाकाबिल कबूल है। मस्तौंग बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का मुकदमा रियासत की मदय्यत में दर्ज किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हुक्म पर फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूलीन की शनाख्त हो चुकी है। वाक़या ईद से कुछ रोज़ कबल पेश आया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का वेबसाइट एक्स पर कहना है कि घिनौने वाक़े पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। तर्जुमान बलोचिस्तान शाहिद अरिंद का कहना है कि इंसानियत सोज वाक़े के तमाम मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल बलोचिस्तान की आला क़यादत ने मुतालबा किया है कि सूबे में गैरत के नाम पर खातून को कत्ल करने वाले दरिंदों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस्लाम औरत को यह हक देता है कि उससे शादी के मामलात में मुशावरत की जाए। अगर किसी जगह पे माँ बाप को इख्तिलाफ है तो उस पे मुशावरत हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन गैरत के नाम पर इस तरह बेदर्दी के साथ एक बेटी को कत्ल कर देना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। ISPR समर इंटर्नशिप के तलबा ने यादगार शहदा का दौरा किया। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की। तलबा ने नम आंखों से अकीदत के दीप जलाए। वतन के जानसारों को इंटर्नशिप के तलबा ने शानदार खराज अकीदत पेश किया। तलबा ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं और हम अपने शोहदा को कभी नहीं भूल सकते। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। उन्होंने कहा कि यादगार शोहदा सिर्फ संगे मरमर और पत्थरों से नहीं बनाई गई, बल्कि हमारे शोहदा के खून से बनाई गई है। Where we got to know what research Army has to do to save and preserve military history. We visited the museum where we got to see different war sites and how our Shoda laid their lives for us so that we could live in this country peacefully. Today we got to visit Yadgar Shoda in General Headquarters and we saw the sacrifice of our brave soldiers. It was truly very inspiring and emotional. हम फौज से हैं और फौज हमसे है. We came here to give honor to those martyrs who have sacrificed their life for the country. And because of them we are feeling safe now. ये जगह सिर्फ संगे मरमर और पत्थरों से नहीं बनाई गई, बल्कि उनकी कुर्बानियों से बनाई गई है जो उन्होंने हमारी आजादी के लिए दी. The ISPR has proved that yes, we are from them and they are from us. And I can proudly say the entire nation, the Pakistani youth, the Pakistani people, they stand firmly with Armed Forces of Pakistan. तुलबा ने आर्मी म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का दौरा भी किया और म्यूजियम में रखे नायाब और तारीखी हथियार और आलात देखे, जिससे वो खूब महजूज हुए। इस मौके पर तुलबा का कहना था कि पाक फौज अवाम से है और अवाम फौज से। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बच्चों की माहौलियाती तरबियत एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत। खैबर पख्तूनख्वा की सरन वैली के कुदरती माहौल में बच्चों के लिए माहौलियाती तरबियती प्रोग्राम का इन्नकाद किया गया। 10 रोज़ा प्रोग्राम की तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। बढ़ती हुई आलूदगी, जंगलात की कटाई और मौसमियाती तब्दीलियों से मुल्क को कई मसाइल का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए मुआशरे के हर फर्द, खास तौर पर नई नस्ल को आगाही फराहम करना होगी। तरबियती प्रोग्राम में 100 के करीब बच्चों को माहौल को महफूज बनाने की अमली तरबियत दी गई। बच्चों को माहौल से हम आहंग रहने और इसे मजीद बेहतर बनाने के मुख्तलिफ तरीकों से रूशनास कराया गया। इस साल की जो NCMC की थीम है वो है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट। एडवेंचर्स करने आई हूँ, कैंपिंग करने आई हूँ और नेचर को एक्सप्लोर करने आई हूँ। बहुत अच्छी सीनरीज है यहाँ पे, पहाड़ हैं,
दरिया हैं, चश्मे हैं। साइंसेस में इंटरेस्ट है, स्पेस साइंसिंग में, तो मुझे स्टार गेजिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने यहाँ पे करनी भी थी, सोचा था करने का, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड्स इतने ज़्यादा है, रेन वगैरह इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग को स्टार्स नज़र ही नहीं आ रहे। तरबियत के दौरान बच्चों ने न सिर्फ शजरकारी, पानी के दुरुस्त इस्तेमाल, कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के जदीद तरीके अपनाए, बल्कि हयातियाती तनव्वु की अहमियत के बारे में भी तरबियत हासिल की। बच्चों ने फितरत के करीब रहकर ये सीखा कि एक सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल इंसान की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। ये माहौलियाती तरबियत सिर्फ मालूमाती ही नहीं थी, बल्कि बच्चों के रवैयों में एक मस्बत तब्दीली की अमली कोशिश भी थी। प्रोग्राम के तहत अब तक 2500 से ज्यादा बच्चे तरबियत हासिल कर चुके हैं। माहौल की बेहतरी के लिए ये एक छोटा कदम जरूर है, लेकिन ये सफर एक बड़े इनकलाब की इब्तिदा हो सकता है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जदीद दौर की चकाचौंध, सोशल मीडिया की भीड़ और मसनूई राबितों के इस ज़माने में जब दिलों का मेल कम और तन्हाई का एहसास बढ़ गया है, ऐसे में हमारे सीनियर फनकारों ने एक खूबसूरत रिवायत को जिंदा करने का अज़्म किया है। वो फनकार जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा रह गए, जिनके दरो दीवार खामोशी से हम कलाम हैं, उन्हें अब अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये कदम सिर्फ रफ़ाकत नहीं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और फ़न के अनमोल रिश्ते का ऐलान है। तफसील बताएंगी फरहाना खान। हमारी मुआशरती रिवायात और इक़दार में हमसाए को माँ जाया करार दिया जाता है, लेकिन इसे मुआशरती और समाजी बेहिसी कहें या सितम ज़रीफ़ी के तवील अरसे तक फ़न की खिदमत करने वाली आयशा खान तन्हाई के आलम में चल बसी, तो नौजवान अदाकारा हुमैरा असगर भी इसी समाजी बेइतनाई का शिकार हुई और इर्द गिर्द किसी को खबर तक न हो सकी। ऐसे में हसास दिल रखने वाले सीनियर आर्टिस्ट कैसे खामोश रह सकते थे। लैला जुबैरी और तौसीक हैदर बारिश का पहला कतरा बनकर सामने आए और फनकारों के लिए कायम तंजीम एक्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फैसला किया कि जहां ये तंजीम माली मुश्किलात में फनकारों की दादरसी करेगी, वहीं ये अहद किया गया कि अकेले रहने वाले फनकारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनकी खबरगिरी की जाएगी, क्योंकि माली मुआविनत तो हुकूमत भी अपने फनकारों की कर लेती है, लेकिन इंसान का इंसान से रिश्ता और ताल्लुक तब मजबूत होता है जब सब आपस में मिले जुले, महफिलों का इनेकाद हो, क्योंकि इंसान की जहनी और नफ्सियाती सेहत के लिए बाहमी मेल जोल बहुत अहम है। मिलने जुलने से ही सब एक दूसरे के मसाइल और परेशानियों से आगाह होते हैं। मैं इसका बेड़ा उठा रही हूँ, इस जिम्मेदारी का, और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने उन तमाम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ कि हम सब जहाँ पर इकट्ठे हो सकें, एक दूसरे की खबर रख सकें, एक दूसरे का ख्याल रख सकें, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह हैं, एक कम्युनिटी है। अगर किसी की कोई फैमिली नहीं भी पूछती तो वो हमें अपना फैमिली समझे। यहाँ पे लैला और तौसीक ने सबको इकट्ठा किया है और इस बात पे सब मुत्तफिक हुए हैं कि कभी तन्हा किसी को नहीं होने देना। मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा सीनियर और नए आने वाले अदाकार अदाकाराओं हर तरह के आर्टिस्ट को कि वो एक्ट पाकिस्तान का ज़रूर मेंबर बने, इसलिए कि उसके अंदर वो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आपके राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, उसके लिए एक्ट पाकिस्तान उसको इंश्योर करता है, उसके लिए काम करता है। एक्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में आयशा खान और हुमैरा असगर की याद में दुआई तकरीब का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें फिल्म, ड्रामा और न्यूज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, मरहूम अदाकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और इस अज़्म का इजहार किया कि सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुआशरे में लोगों के बाहमी ताल्लुकात की मजबूती में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सरदार अफीफ इशफाक ने सऊदी अरब में ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। गुज़श्ता रोज़ उन्हें किसी शख्स की खोई हुई रकम 35,000 सऊदी रियाल मिले, जो पाकिस्तानी 26 लाख रुपए बनते हैं। उन्होंने असल मालिक को वापस करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की। यह रकम उन्होंने तमीमी कंपनी के ऑफिस में मालिक के हवाले की। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत का खेल के साथ एक मरतबा फिर खिलवाड़। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों की हट धर्मी के बायस पाकिस्तान और भारत का मुकाबला मंसूख कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद अफरीदी के खौफ से भारतीय खिलाड़ी बहाना बनाकर फरार हो गए। तफसील जानते हैं ज़िशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में।
ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत हर मैदान में पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रहा है। हमेशा की तरह भारत एक मर्तबा फिर खेल में सियासत घसीट कर ले आया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय खिलाड़ी बहाना बनाकर फरार हो गए। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े मुकाबले के लिए शायकीन बेताब थे। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद अफरीदी के डर से चंद भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों में शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान और हरभजन सिंह समेत दीगर शामिल थे। भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि अगर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम अफरीदी भारतीयों के असाब पर सवार हैं, क्योंकि अपने जमाने में शाहिद अफरीदी ने भारतीय बॉलर्स की जो पिटाई की वो उन्हें हमेशा याद रहेगी। Full toss gets the treatment. 6. Third of the innings for Afridi. It's a big one. Whoa. It made a cracking sound. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's 6. Shahid Afridi, you beauty. What a win. Pakistan have snatched it. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत की जानिब से इनकार के बाद क्रिकेट फैंस को जहां शदीद मायूसी हुई, वहीं भारतीय रवैये पर उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया। शायकीन ने खेल के मैदान में इस तरह की सियासत को अफसोसनाक करार दिया है। ज़िशान कयूब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 7 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। मेजबान टीम ने 111 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मैच की तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। ढाका में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम हुई और 19.3 ओवर्स में 110 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंचने में कामयाब हुए। फखर जमान 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। Again down the wicket he comes and he played that beautifully long off. Again this time around down the way to finish the over. खुशदिल शाह ने 17 और अब्बास आफरीदी ने 22 रन स्कोर किए। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, सलमान आगा 3 और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। Goes for the big one and the connection was sweet. Now it's up in the air but it's going to sail away into the crowd. बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3 और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की। Up in the air, there's a chance of a catch and it's been taken by the keeper and this is the first time. जवाब में बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर परवेज हुसैन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 56 रन पर नॉट आउट रहे। तौहीद हिरदवाई 36 रन बनाकर आउट हुए। A little bit more pressure. Oh, sweet timing. That's a friendly delivery. Goes for the big one and it will clear quite comfortably. पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले सलमान मिर्जा ने 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट अब्बास आफरीदी के हिस्से में आई। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को ढाका में ही खेला जाएगा। T20 सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। That's it. Bangladesh go on to seal the first T20 international by 7 wickets, courtesy of Jakir Ali's boundary. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एशियन चैंपियनशिप जीतने पर अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को 82 लाख रुपए कैश अवार्ड देने का ऐलान किया है। पीएसबी के तर्जुमान के मुताबिक तारीखी फतह पर अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के हर खिलाड़ी को 6 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। पीएसबी कैश अवार्ड पॉलिसी के तहत 12 रुकनी स्क्वाड के लिए मजमूई तौर पर 72 लाख कैश अवार्ड दिया जाएगा, जबकि कोच को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने थाईलैंड में होने वाली एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल में पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। अमेरिकन मेजर सॉकर लीग में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स को शिकस्त दे दी। न्यू जर्सी में खेले गए मैच में मेसी की टीम ने न्यूयॉर्क को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। लियोनेल मेसी और टेल्स्को ने 2-2 गोल किए। न्यूयॉर्क में 14वें मिनट में गोल करके सबकत दी, जिसे 10 मिनट बाद मियामी ने न सिर्फ बराबर कर दिया बल्कि 27वें मिनट में टेल्स्को ने दूसरा गोल करके हरीफ टीम को दबाव में ले लिया। दूसरे हाफ के आगाज में ही सेगुआ ने एक बार फिर फुटबॉल को न्यूयॉर्क की गोल पोस्ट गिरा दिखाई। 60वें और 75वें मिनट में लियोनेल मेसी ने गोल करके अपनी टीम को फतह से इम्तियान किया। At home. Brunel and then just puts the ball into the back of net, and just when you think you're getting yourself back.
नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।